ఈరోజు మనం నిర్వహిస్తున్నటువంటి వెబినారు ప్రముఖ స్వాతంత్ర పోరాట యోధుడు, అదేవిధంగా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రి నెహ్రూ మంత్రివర్గంలో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. స్వాతంత్రోద్యమంలో ఆయన పాత్ర, దేశ నిర్మాణంలో కూడా ఆయన పాత్ర గురించి మనతో ప్రొఫెసర్ రామ్ పున్యాని గారు ఐఐటి నుంచి రిటైర్ అయ్యారు, బాంబే. వారు మాట్లాడతారు. వారు అనేక గ్రంథాలు రాశారు. ఇప్పటికీ రెగ్యులర్గా అనేక పత్రికలకి కాంట్రిబ్యూట్ కూడా చేస్తుంటారు కాలమిస్ట్గా. వారు ఈ విషయం మీద మనకు మాట్లాడతారు. ఆ విషయం ఏంటంటే, స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ముస్లింలు కూడా పాల్గొన్నప్పటికీ, చాలామంది నాయకులు ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొని చనిపోయినప్పటికీ దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు చాలామందికి తెలియవు. అది సరిగ్గా పాస్ ఆన్ కాలేదు. అటువంటి వాళ్ళల్లో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ కూడా ఒకడు. కాంగ్రెస్ ముఖ్య నాయకత్వంలో అంటే గాంధీజీ, పటేల్, నెహ్రూ ఆ స్థాయి వాడు మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్. ఆయనకు మౌలానా అంటే పండితుడు అనే అర్థము. అబుల్ కలాం ఆయన పేరు, ఆజాద్ అంటే ఆయన పెన్ పేరు. ఆయన పుట్టింది మక్కాలో 1857లో ప్రథమ స్వాతంత్ర పోరాటం సందర్భంగా, సిపాయిల తిరుగుబాటు సందర్భంగా వాళ్ళ ఫాదరు అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఫాదరు మక్కా వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడ్డారు. ఆయన అక్కడే పుట్టారు. ఆ తర్వాత ఇండియాకు వచ్చి స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. ఆ ఉద్యమంలో భాగంగానే ఆయన అల్ హిలాల్ అనేటువంటి ఒక ఉర్దూ పత్రికని ఆయన బెంగాల్ నుంచి స్థాపించారు. ఆయన అరబ్బీ, ఉర్దూ, బెంగాలీ, హిందీ ఇట్లా అనేక భాషల్లో, ఇంగ్లీషు ఇట్లా అనేక భాషల్లో పండితుడు. అదేవిధంగా చాలా శాస్త్రాల్ని కూడా ఆయన అధ్యయనం చేశారు. కనుక ఒక మేధావిగా ఆయన్ని మనం భావించాలి. అందుకే ఆయన్ని నెహ్రూ తన మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రిగా నియమించుకున్నారు. ఆయన పీరియడ్లోనే ఈరోజు మనం దేశంలో చూస్తున్నటువంటి ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు, రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన పీరియడ్లోనే ఉనికిలోకి వచ్చాయి. వాటన్నింటి వెనక ఆయన కృషి ఉంది. ఆయన స్థాపించినటువంటి అల్ హిలాల్ పత్రిక కేవలం స్వాతంత్రోద్యమంలో పోరాటమే కాదు, హిందూ ముస్లిం సమైక్యత, సామరస్యం ఇటువంటి అంశాలకి కూడా చాలా వ్యాసాలు రాసేది, దాన్ని ప్రచారం చేసేది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము ఆ పత్రికని నిషేధించింది. ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే, 1940లో మహమ్మద్ అలీ జిన్నా మాకు సపరేట్ పాకిస్తాన్ కావాలి అని ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటు చేసి డిమాండ్ చేయటం మొదలుపెట్టాడు. దాన్ని ఈయన చాలా వ్యతిరేకించారు. రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాల్లోనూ, అదేవిధంగా ఇతర సమావేశాల్లోనూ పాకిస్తాన్ అనేటువంటిది ఏర్పడితే అది కొనసాగదు, అక్కడ సైన్యమే పరిపాలన చేస్తుంది. పాకిస్తాన్లో ఈరోజు, పశ్చిమ పాకిస్తాన్లో ఈరోజు తూర్పు పాకిస్తాన్ భాగమై ఉండవచ్చు, కానీ అది దాని వెంట ఉండదు, అది తప్పకుండా విడిపోతుంది అని ఆయన 1946లోనే చెప్పాడు. అదేవిధంగా మనం చూస్తాము బంగ్లాదేశ్ వేరు కావటము. అంతటి దార్శనికుడు ఆయన. ఆయనకు రావాల్సినటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలు దక్కలేదనే చెప్పాలి. ఆయన జన్మదినం నవంబర్ 11 అని కొన్ని చోట్ల, నవంబర్ 10 అని కొన్ని చోట్ల ఉంది. 1888లో పుట్టారు ఆయన. ఏమైనా ఈరోజు మనం ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఒక వెబినార్, ఆయన స్వాతంత్రోద్యమంలో చేసిన పాత్ర, దేశ నిర్మాణంలో ఆయన పాత్ర అనేటువంటి అంశం మీద ఈరోజు వెబినార్ నిర్వహిస్తున్నాము. దీంట్లో డాక్టర్ రామ్ పున్యాని గారు మాట్లాడతారు. He will speak for 40 minutes, then followed by question and answers. ఆయన హిందీలో మాట్లాడతారు. హిందీలో మాట్లాడడం వల్ల ఎక్కువ మంది ప్రజల్లోకి ఈ ప్రసంగాన్ని తర్వాత యూట్యూబ్ ద్వారా తీసుకెళ్ళవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన్ని హిందీలో మాట్లాడమని మనం రిక్వెస్ట్ చేశాము. ఆయన హిందీ ఉపన్యాసాన్ని మధ్య మధ్యలో ఆయన బ్రేక్స్ ఇస్తారు. దాన్ని మన జగదీష్ దాన్ని తెలుగులోకి అనువదిస్తారు. Now I request Professor Ram Punyani to start his talk. Thank you.
Good evening, friends. I am very happy that सुंदरैया विज्ञान केंद्रम, मैं हिंदी में बोलूं, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी में बोल दीजिए सर। जी। दोस्तों नमस्कार। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि सुंदरैया विज्ञान केंद्रम ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन 11 नवंबर जो है उसको, जो हम नेशनल एजुकेशन डे भी कहते हैं, उसको मनाने का निर्णय किया है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो पूरा योगदान था भारत के आज़ादी के आंदोलन में, हिंदू मुस्लिम एकता में और आज़ादी के आंदोलन को मजबूत करने में, उसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो श्री विनय कुमार ने जो पहले उनके जीवन के बारे में परिचय किया है उसको मैं नहीं दोहराऊंगा, पर इतना ही कहूँगा कि उनका जन्म मक्का में हुआ था और मक्का से बाद में वो भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, एंटी कॉलोनियल ब्रिटिश विरोधी आंदोलन, उसको उन्होंने, उसमें वो शामिल हो गए और पूरी प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से इस आंदोलन में वो शामिल हुए और पूरे जन्म भर इस आंदोलन से और इस पार्टी से वो जुड़े रहे। तो उनके जीवन के भाग में अलग अलग चीजें हमको दिखती हैं। पहली बात तो वो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे। ये बात हम याद रखें कि कई लोग बाद में उनका जिन्होंने विरोध किया, वो इस्लाम के नाम पे उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो व्यक्ति थे जो इस्लाम को पूरा पूरा समझते थे। इस्लाम में जो कुछ लोगों के कारण ये रिजिडिटी, ऑर्थोडॉक्सी, पिछड़े विचार घुस गए थे, उसके विरोध में थे। उन्होंने कहा इस्लाम में कयास, कयास यानी क्या, रैशनल थिंकिंग और डिस्कशन के आधार पे नई बातों का भी की जगह है। उन्होंने हदीथ जो, जिसके आधार पे कई लोग अपनी अपनी राजनीति चलाते हैं, हदीथ का पूरा विरोध किया क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं और इसको वो महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो कुरान को दिया जाना चाहिए। तो कुरान में उनका अध्ययन बहुत गहरा था। वो पूरे पूरे इसके स्कॉलर थे जिन्होंने इसकी एक एक बात को गहराई से समझा और ये बात भी बताई कि कुरान के जो दो शब्द हैं, जिहाद और काफिर, उसका दुरुपयोग काफ़ी जगहों पे होता है क्योंकि उनके अनुसार जिहाद का मतलब होता है पूरी पूरी कोशिश करना अच्छाई के लिए, और अच्छाई के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद जिसको हम कहते हैं, उसमें कोई किसी को मारने की बात, हिंसा की बात नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि कुरान में जिहाद शब्द 42 टाइम्स आया, पर कहीं भी उसका मतलब हिंसा से, युद्ध से, लड़ाई से नहीं है। ये अपनी बेहतरी के लिए, अपनों को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो कोशिश है, उसको ये जिहाद कहा जाता है। दूसरा, काफिर यानी जो सच्चाई को छुपाता है। काफिर यानी जो सच्चाई को छुपाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस्लाम को न माने या जो आपकी बात को न माने वो काफिर है। ये सोचना जो आजकल आ गया है वो पूरी तौर से गलत है। तो जिहाद और काफिर, ये दो शब्द आज भी बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में उन्होंने शुरू में ही अपनी किताब तर्जुमा कुरान और बाकी उनके जो बहुत गहरे एकेडमिक किताबें हैं उसमें उन्होंने काम किया। फिर यहाँ आने के बाद सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम था वो था खिलाफत आंदोलन से जुड़ना। अब उस समय आप जानते होंगे तुर्की में जो खलीफा था, दुनिया भर के मुसलमान उसे अपना नेता मानते थे और ये उत्तराधिकार के कारण उसको अपना नेता मानते थे। फिर ब्रिटिश ने जब वहाँ उसकी खिलाफत छीन ली तो उन्होंने पूरे दुनिया के मुसलमानों को काफ़ी नाराज़गी हुई और उन्होंने कहा कि ये हमारे पूरी कौम पर एक बहुत बड़ा आक्रमण है। तो खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के मुसलमान जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के कारण दुखी हैं, जो भारतीयता के आधार पे अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। अब ये एक बात हो गई और इसके लिए उन्होंने अल हिलाल नाम का एक पत्र निकाला जिसमें वो ब्रिटिश की भी आलोचना करते थे
और सही मुद्दों को उठाते थे। पर जैसा कि ब्रिटिश का था, कोई भी चीज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको ब्रिटिश ज्यादा नहीं मानते थे शुरू में, तो इसलिए उन्होंने अल हिलाल को बैन कर दिया। अल हिलाल की उनकी जो पत्रिका थी उसको बैन कर दिया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जेल में डाल दिया। पर खैर, मौलाना का जो स्वभाव था काफी सरल स्वभाव के थे, उनकी बहुत ज्यादा मांगे नहीं थी। केवल उनको शायद अगर मजाक में कह दूं तो चाय पीने का बहुत शौक था, जो हम में से कईयों को भी हो सकता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा किसी चीज की उनको लालच वगैरह नहीं रहती थी। अब जब खिलाफत का आंदोलन चल रहा था तो उनकी समझबूझ और प्रतिबद्धता को देखकर खिलाफत कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया गया और इस रोल में उन्होंने देश भर के मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम किया। ये काम उन्होंने काफी सफलता से किया और बहुत सारे बड़े मुस्लिम नेता इसके साथ जुड़ गए, मौलाना आज़ाद के साथ जुड़ गए और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ शामिल हो गए। अब देखिए, उनकी कांग्रेस के अंदर ही राष्ट्रीय आंदोलन में इतनी लोकप्रियता थी कि वो और उनकी इतना जो कमिटमेंट था, प्रतिबद्धता थी, उसको देखकर केवल 35 साल की उम्र में 1923 में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया पहली बार। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बने 1923 में, जबकि उनकी उम्र केवल 35 साल थी और इस आधार पे उन्होंने जो महात्मा गांधी का मिशन था हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता कायम करने का और इनको पूरा एक प्रकार का राष्ट्रीयता की बात, उसके में उन्होंने शुरुआत की। मौलाना आज़ाद की खास बात ये थी कि वो धर्म को राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ते थे। He did not relate religion with the nationalism. उनका ये कहना था, जो भारत में हिंदू रहते हैं वो इंडियंस हैं, जो मुसलमान रहते हैं वो भी इंडियंस हैं, क्रिश्चियंस भी इंडियंस हैं, यानी जिसका कोई भी धर्म हो वो एक इंडियन के रूप में यहाँ है। यानी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के अंदर अपना किया, तो 1923 के बाद जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उस समय राष्ट्रवाद के 3 प्रकार चल रहे थे। 3 प्रकार के राष्ट्रवाद, यानी एक तो भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें समाज के सभी तबकों के लोग, सभी धर्मों के लोग, मजदूर वर्ग, किसान, ये सब उससे जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद में एक बात कॉमन थी, एक बात सामान्य थी, वो ये कि ज्यादातर इसका प्रभाव और इसका जो उगम हुआ वो मुसलमान राजा या हिंदू राजाओं के बीच में से हुआ। जब हिंदू राजा और मुसलमान राजा जमींदारों ने देखा कि उनका जो समाज पे कब्जा है वो कम हो रहा है, और महात्मा गांधी के आंदोलन में लोगों ने अपनी उम्मीद देखी कि हमको बराबरी हो सकती है, हमारी गरीबी दूर हो सकती है, हमको बराबरी के मूल्य मिल सकते हैं, हम बराबरी के नागरिक बन सकते हैं, तो ज्यादा लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े। इसमें जैसे आप देखेंगे तो जो भी हमारे महान क्रांतिकारी रहे हैं, सरदार शहीद आजम भगत सिंह हों, या जो हमारे बड़े नेता रहे हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो सब भारतीय राष्ट्रवाद को मानने वाले थे। ये भारतीय राष्ट्रवाद को मानते थे, और उधर से जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे वो हिंदू राष्ट्रवाद या मुस्लिम राष्ट्रवाद को मानते थे। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद वालों ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, चुपचाप अंग्रेजों को सबमिट कर दिया, अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गए। जबकि राष्ट्रीय आंदोलन ने अंग्रेजों का भी विरोध किया, लोगों को जोड़ने का भी काम किया, और इसी कड़ी में मौलाना आज़ाद ने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आंदोलन, इसमें पूरे जोर शोर से भाग लिया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से धीरे धीरे भारत जुड़ रहा था, एक दूसरे के करीब आ रहा था। क्योंकि जो हमारा देश बना, उस समय हम कहते हैं भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। मौलाना आज़ाद इसी बात के कायल थे
कि इन्हीं आंदोलनों से भारत राष्ट्र बनेगा, जबकि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये अपने राष्ट्रवाद को पुराने राजाओं से, पुरानी संस्कृति से, पुरानी वैल्यू से, पुराने मूल्यों से, ऊंच नीच के मूल्यों से, ऊंच नीच जाति का हो या पुरुष और स्त्री का हो, तो ये सांप्रदायिक संगठन ये ऊंच नीच में मानते थे, पुराने राजाओं के आधार पे ये चलते थे। तो उसमें मौलाना आज़ाद एक ऐसे बड़े ओहदे के व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीयता को धर्म से नहीं जोड़ा, और ये उनकी खास बात थी। और उनके विरोध में मुस्लिम लीग ने कहा हम मुसलमान हैं, इसीलिए हमको पाकिस्तान मिलना चाहिए। और हिंदू महासभा आरएसएस, इन्होंने कहा हम तो हिंदू राष्ट्र हैं। और यहाँ मौलाना आज़ाद जब इतनी मजबूती से अपनी बात रखते थे तो मुस्लिम लीग उनकी आलोचना करती थी और कहती थी ये तो भाई सिर्फ कांग्रेस का मुस्लिम शो पीस है, और उनके खिलाफ बहुत सारा प्रचार करती थी। थैंक यू। यहाँ एक बात नोट करने की है कि कांग्रेस के अंदर मौलाना आज़ाद ये बहुत लोकप्रिय थे, और महात्मा गांधी के सिद्धांत और जवाहरलाल नेहरू इनसे इनकी काफी गहरी दोस्ती थी। तो अब जब दूसरा महायुद्ध, विश्व महायुद्ध शुरू हुआ 1939 में, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को बिना पूछे उनको सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया। अब ये जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी राज्यों में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दे रिजाइन। अब ये जब उन्होंने, तो इसमें मुस्लिम लीग ने कहा इट इज अ ग्रेट डे ऑफ ग्रेट डिलीवरेंस, डे ऑफ ग्रेट डिलीवरेंस, यानी कांग्रेस के मुसीबत से हमको छुट्टी मिल गई है। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हमें एक बड़ी कोशिश करना चाहिए। तो मौलाना आज़ाद इनके पूरे साथ में थे, सरदार पटेल भी साथ में थे, नेहरू भी साथ में थे। ये सब लोग काफी उत्सुक थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करें। अब इसी में एक और समस्या आ गई कि सुभाष चंद्र बोस इस बात से सहमत नहीं थे, और उन्हें लगा कि अहिंसा के रास्ते को छोड़कर, अगर अहिंसा के रास्ते को छोड़कर अगर हिंसा से भी हमको आज़ादी मिलती है तो हमने वो करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जापान और जर्मनी के साथ दोस्ती करके ब्रिटिश के विरोध में अपना एक मोर्चा खोला। और बाकी कांग्रेस के जो भी सदस्य थे, मौलाना आज़ाद भी उसमें थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन छोड़ा बाद में, जिसको यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये जो प्रस्ताव था, इसके साथ ही उस समय मौलाना आज़ाद फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1941 में शायद फिर से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और उनके नेतृत्व में ही ये पूरा कांग्रेस के अधिवेशन ने ब्रिटिश क्विट इंडिया का नारा स्वीकार किया, जिससे पूरे देश में आंदोलन चालू हो गए। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बाकी कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, 5 साल तक ये जेल में रहे। और उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम आया। और जेल में भी उन्होंने अपने दोस्तों को, जो साथी थे जेल में, उनको उर्दू सिखाने का काम, अरेबिक सिखाने का काम, इस्लाम को समझाने का काम, ये काम में लगातार जेल में भी वो सक्रिय रहे। ही वॉज वेरी एक्टिव। थैंक यू। तो अब जब ये 1945 के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और यहाँ एक और बात बता दूं, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन ने ये फैसला किया था, उसमें ये निर्णय आया था कि जो हमारा केंद्र सरकार होगी, उसके पास केवल सुरक्षा, विदेश विभाग, संचार विभाग और वित्त विभाग, ये 4 विभाग केंद्र के पास होंगे, और बाकी सब राज्यों के पास पूरे अधिकार होंगे। और ये राज्यों को भी ABC कैटेगरी में डाला गया, उनके मुस्लिम मेजॉरिटी के हिसाब से, हिंदू मेजॉरिटी के हिसाब से। अब ये क्रिप्स मिशन मुस्लिम लीग को भी स्वीकार था, ये कांग्रेस को भी स्वीकार था, और मौलाना आज़ाद इसके लिए काफी उत्साहित थे कि भारत एक रहेगा
और इस क्रिप्स मिशन की जो मांग थी, एक कमजोर केंद्र और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पूरा जो होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, उसमें वो मानते थे। अब क्या हुआ कि इसके बाद फिर ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रभाव था, उसके कारण अंग्रेजों की ताकत कमजोर हो गई और वो भारत को आज़ादी देना चाहते थे। दे वांटेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। और बाद में जब माउंटबेटन प्रस्ताव आया, माउंटबेटन प्रस्ताव में सबसे पहले सरदार पटेल ने स्वीकृति दी। मोहम्मद अली जिन्ना तो 1940 से ही पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, जिसका विरोध मौलाना आजाद ने बहुत मजबूती से किया। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। अब जब बाद में 1945 के बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी, ब्रिटिश सरकार की सत्ता के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो नेहरू और पटेल ये उसके सदस्य थे। सरदार पटेल ने देखा कि वो जो भी निर्णय लेते हैं, मुस्लिम लीग के मेंबर्स उसको शूट डाउन कर देते हैं, उसको होने नहीं देते, क्योंकि उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, सरदार पटेल के पास होम डिपार्टमेंट था, नेहरू ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा कि भारत का पार्टीशन होना चाहिए, तो सरदार पटेल ने, क्योंकि वो बहुत इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग का जो तरीका था उससे बहुत दुखी थे, परेशान थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, पर पार्टीशन होता है तो हो जाने दो। नेहरू ने भी बाद में इस बात को स्वीकार किया, और मौलाना आजाद ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा धर्म के नाम पे देश का बंटवारा नहीं हो सकता, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भले ही वो कांग्रेस में थे, पर जो कांग्रेस मुख्य रूप से इस बात को सबमिट कर रही थी, इस बात को सरेंडर कर रही थी कि पार्टीशन होता है तो हो जाने दो, तो दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनका पूरा विरोध किया। एक था महात्मा गांधी और दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब जब पार्टीशन हुआ तो ये बहुत एक दुखद घटना थी। इट वाज अ बिग ट्रेजेडी in which I think nearly 10 lakh people died. Some Hindus tried to come from Pakistan areas to India. Some Muslims tried to go from India to Pakistan. And here, यहाँ जो था, इन्हें उधर के हिंदू इधर आ रहे थे, यहाँ के मुसलमान उधर जा रहे थे। तो मौलाना आज़ाद ने, उसके पहले एक घटना हुई, मौलाना आज़ाद ने पार्टीशन का इतना विरोध किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई फरिश्ता यानी कोई गॉड भी ऊपर से आ जाए और मुझे कहे कि भाई मैं तुमको आज़ादी देता हूँ पर ये पार्टीशन रहेगा, तो उन्होंने कहा मैं इस प्रकार के पार्टीशन को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं हिंदू मुसलमान में किसी प्रकार का भेद नहीं देखना चाहता। तो वो बहुत मजबूत थे इस बात पे कि भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो भारत के मुसलमान भारत को छोड़ के जा रहे थे, मौलाना आज़ाद ने उनसे अपील की कि आपकी पूरी जिंदगी तो यहाँ गुजरी है, यहाँ आपके पूर्वजों की कब्रें हैं, यहाँ आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ आपके मदरसे हैं, ये छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो। तो ये उनका उस समय का बात था। पर खैर, आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन डिपार्टमेंट का भाग दिया गया था। तो वैसे मौलाना आज़ाद बहुत दुखी थे पार्टीशन से, उन्होंने कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया। पर बाद में जब एजुकेशन की उन पर जिम्मेदारी डाली गई तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओवर। मौलाना आज़ाद जब शिक्षा मंत्री बने तो उस समय देश में जो इलिटरेसी रेट था बहुत ऊंचा था, हायर एजुकेशन में कोई जगह नहीं थी। तो नेहरू और मौलाना आज़ाद ने जो नीतियां बनाई, खास तौर से मौलाना आज़ाद ने इम्प्लीमेंट किया, उसमें पहली बात तो ये थी कि एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, क्योंकि लिटरेसी रेट उस समय बहुत कम था, तो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम पे उन्होंने बहुत जोर दिया। दूसरा, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कई इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशन डाली, खास तौर से जो अभी IITs जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी नींव में मौलाना आज़ाद का बहुत बड़ा हाथ था। इसी प्रकार से जो पूरा भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जिसको रैशनलिज्म, तार्किक सोच और धर्मनिरपेक्ष सोच के आधार पे बनाने में मौलाना आज़ाद का बहुत बड़ा योगदान था। और यहाँ वो कल्चर के बारे में भी काफ़ी सेंसिटिव थे, और इसीलिए आगे आप देखेंगे ICCSR जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिससे वो चाहते थे कि दूसरों देशों से भी भारत का सांस्कृतिक
आदान प्रदान हो, ताकि हम उनसे सीखें और हमारे पास जो है वो उनको दें। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत उन्होंने महान काम किया, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि भारत में इलिटरेसी, जो अशिक्षा है, वो बहुत कम हो गई है। उच्च शिक्षा में भारत का जो स्थान हुआ वो अभी पिछले 10-12 साल में नहीं हुआ है। उसकी फाउंडेशन, उसकी आधारशिला ये मौलाना आज़ाद के समय से डाली हुई थी। इसमें नेहरू का भी विजन था और मौलाना आज़ाद ने उसको इम्प्लीमेंट किया। दोनों का विजन मिला के ही हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आया अंग्रेजों के जाने के बाद, वो यहाँ से आया। और तीसरी बात कि उन्होंने ऐसी एकेडमीज की स्थापना की जो हमारे यहाँ के साहित्यकारों को, संगीतकारों को, इनको भी प्रबुद्ध करे। और एक और उन्होंने यूनिक कंसेप्ट उस समय डाली थी, वो थी यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो यूनिवर्सिटी को एनकरेज करके उनको आगे रास्ते पर ले चले। तो इसलिए मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद का योगदान भारत के आज़ादी के आंदोलन में, नए भारत के निर्माण में बहुत महान है। उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। Sir, there is a question that was there any conspiracy by the British to divide India? Was Yeah. it really there? या जी, विनय जी पूछ रहे हैं कि क्या अंग्रेजों की कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि जो भारत को डिवाइड करे। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो यहाँ के जो सांप्रदायिक ताकतें थी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये अपने अपने राष्ट्रवाद की बात कर रही थी, जो भारतीय राष्ट्रवाद से अलग था। ब्रिटिश का इंटरेस्ट ये था कि वो देख रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में जो वामपंथी सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, वो काफी एक्टिव थे। यानी कम्युनिस्ट 1942 के बाद कम थे, पर पहले वो भी पूरे एक्टिव थे। तो ब्रिटिश को लगा अगर भारत अनडिवाइडेड रहता है, इफ इंडिया रिमेन्स अनडिवाइडेड, देन इंडिया विल ट्राई टू अलाई विद सोवियत यूनियन। दैट टाइम देयर वर टू पोल्स, एक तो अमेरिका का था, दूसरा रशिया का था। तो उनको लगा नेहरू भी समाजवादी हैं, और समाजवादी और कम्युनिस्ट लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत सोवियत यूनियन के साथ अलाय करेगा तो हमारे मार्केट्स, हमारा जो मिलिट्री पावर, मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री प्रभाव है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस इस एरिया में है, और ट्रेड इन्फ्लुएंस है, वो कम हो जाएगा। इसलिए एक मैंने कहीं पढ़ा था, वो पता नहीं मैं उसका रेफरेंस भूल गया। जसवंत सिंह अपने एक आउटलुक में लिखते थे कि जब लॉर्ड वेवेल ने देखा कि भारत पर राज करना असंभव हो गया है और इसको आज़ादी देना चाहिए, तो उन्होंने विंस्टन चर्चिल को पूछा कि सर, इट इज डिफिकल्ट टू रूल इंडिया, व्हाट डू वी डू? बोले, नो प्रॉब्लम, यू डिवाइड इट इनटू हिंदू एंड मुस्लिम एंड our job will be done. We can give independence to India on that basis. तो ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी बहुत स्ट्रांग थी, और ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट किया मुस्लिम कम्युनलिज्म ने और हिंदू कम्युनलिज्म ने। ये दोनों ताकतें बराबर, पैरेलल एंड अपोजिट, सप्लीमेंटिंग द ब्रिटिश एजेंडा, ऐसा था। Okay, there is another question that after 1942 Quit India movement, most of the Congress leaders were arrested. This facilitated Maulana Azad to gain command over majority Muslims. Is it a fact? Some historians say just because all the Congress leaders, including Muslim, whoever is in Congress, Muslim leaders were also arrested, and this gave a scope to Maula, this thing, Jinnah, to gain over Muslim community in India. Is it a fact? See, firstly, let me clarify. Maulana Azad was also in jail. Maulana Azad was also in jail. So there is no question of Muslim communalism. Means he was against Muslim communalism and Jinnah anyway. Jinnah used to look down upon him. So actually, Jinnah's influence and Muslim League's influence increased after this. That is true. And because a large section of Muslim middle class, they started getting communalized. So earlier, most of the Muslims were with Gandhi, and they were for composite Indian nationalism. But
with this, the influence of Jinnah slightly increased. That is true, but it must be also clarified that all Muslims were not for partition. Mainly, it was the upper elite Muslims, and then later on, some middle class Muslims got communalized. But the average Muslim poor, they remained with Gandhi national movement and anti-colonial movement, like this Ansaris and large number of people who held the conference in the name of Indian Muslim Conference. They all remained with a national movement. Okay, sir. There is a movie, its name is Viceroy's Residency. In that movie, what is shown that the map for division of India was drawn in Churchill's period, though it was executed in Attlee period. That is, it was drawn in Conservative Party period and executed in Labour Party period. Is it a fact? I am not sure of that. I'm not sure of that because one thing is known that the partition map was drawn in hurry. Not too much thought was given to that. So it was a work of few days by one of the British officials. So I am not sure of this. My point is the map was not drawn properly. In hurry, it was drawn, but the plan to divide, whose plan it was? Was it Attlee's plan? Was it Churchill's plan? Whose plan it was? Yeah, that it was clearly Churchill's plan, which Attlee implemented. That you are right. I missed the question, and whatever time the were drawn, lines were drawn probably at Attlee's time. That is most likely, because that officer who was there, I'm forgetting his name, he just did it a hurried job. He drew a line and that's it. So, but you are right. Churchill himself had conceded to this demand of partition. Okay. One thing is Savarkar was arrested. He was along with Godse. He was on the in the box, but Agreed. court did not agree because there was no corroborative evidence Correct. against him. Government did not collect properly. I think so. That is what written. Yeah. Some students have written that corroborative evidence was not collected properly. Anyhow, sir, You're right. now there are no questions. We will end our program here. Thank you very much for coming Thank on the line and explaining the role of Maulana Abul Kalam Azad.